Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing well. Students, in the series of the lectures of microeconomics, we have so far analyzed and discussed the definition of economics, economic agents, and the economy. And particularly in lecture 5, we have summarized and concluded our discussion that there are three things in the whole of the economy. For example, economic agents that were consumers, producers, government and traders, the fundamental markets including the market of goods and services, labor market or the market of factors of production, and the money market. And thirdly, there were the three major sectors of the economic society including agriculture sector, industrial sector, and most important, the services sector. And we left our discussion that when we inexorably interact the three things of the economic society, this situation is commonly known as the economy. So we resume our discussion from lecture 5, and today in lecture 6 we will be discussing particularly microeconomics, which is our major subject and which is our major domain. Microeconomics is the branch of economics that deals with the individual part of the economy. When we discuss the separate entity of the society, to that I mean when we discuss consumers as a separate part of the society, this is known as microeconomics. We do not interact consumers with the producers, with the government and with the traders. We isolatedly discuss the consumers. That is simply known as microeconomics. Micro, I already told you, is a Greek word which means small. By the same token, if we discuss producers separately, independently, as a separate and individual part of the society, this will be known as microeconomics, and we do not interact producers with the consumers, government or traders. And when we discuss government as an independent part of the society, we will regard it as a part of microeconomics. So microeconomics starts with the discussion of demand, and later on we will discuss in this video that what is demand and what is law of demand and what is difference between demand and law of demand. So starting with the discussion of demand, you can see on your screen that there are three components of demand. Number one is wish to purchase. विश टू परचेज का मतलब ये है कि कंज्यूमर रैशनल है. रैशनल का मतलब कि कंज्यूमर सेंसेबल है. अगर वो कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो उसे मार्केट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है. मार्केट मैंने आपको बताया था कि इट इज़ ए प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड एंड प्राइसेस आर सेटल्ड. यानी चीज़ों का लेन देन हो रहा है, ख़रीद भी हो रही है, फ़रोख्त भी हो रही है और साथ साथ प्राइसेस की सेटलमेंट भी हो रही है. अब कंज्यूमर्स को इस मार्केट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, और उस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि कंज्यूमर रैशनल है, सेंसेबल है. वो जो चीज़ मार्केट में ख़रीदने जा रहा है उसे उसके साइज़ का पता है, उसकी मैग्नीट्यूड का पता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी का पता है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का पता है, उसके टेस्ट का पता है, प्रेफरेंसेस का पता है. यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसे. तो पहला कंपोनेंट रैशनैलिटी है. अब रैशनैलिटी है, अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो डिमांड नहीं हो सकती. तो डिमांड का एस्पेक्ट उसी वक्त कंप्लीट होगा जब उसके पास पावर टू परचेज है. और पावर टू परचेज का मतलब कि उसके पास सफिशेंट रिसोर्सेज हैं. क्योंकि डे 1 से जब मैंने तज़किरा किया इकनॉमिक्स की डेफिनेशन से, तो वहाँ पे दो ही चीज़ें मैंने डिस्कस की थी कि कंज्यूमर की वांट है और कंज्यूमर के रिसोर्सेज हैं. वांट्स अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके उसने अपनी परचेज़ को अकम्प्लिश करना है. अब ये दो चीज़ें या दो रिक्वायरमेंट या ये दो कंपोनेंट काफ़ी नहीं है डिमांड को
डिमांड के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए। डिमांड का कॉन्सेप्ट उसी वक्त कंप्लीट होगा जब उसके साथ साथ तीसरी कंडीशन भी पूरी हो, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि अप्रोप्रिएट प्राइस, जिसे रीज़नेबिलिटी भी कहते हैं। यानी एक कंज्यूमर की विश है कि वो सेल फ़ोन परचेज़ करे। अब सेल फ़ोन परचेज़ करने के लिए उसे ब्रांड का पता होना चाहिए, उसे उसके पार्टिकुलर्स का पता होना चाहिए कि इसका रोम कितनी है, इसकी रैम कितनी है, इसमें इंटरनल हार्ड ड्राइव कितनी है, इसका स्क्रीन कितनी है, इसकी बैटरी टाइमिंग क्या है, इसकी कॉल टाइमिंग क्या है, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इसकी रीसेल क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो उसे अवेलेबल होंगी, हम कहेंगे कि कंज्यूमर रैशनल है। अब जितने का वो सेल फ़ोन आएगा उतनी अमाउंट उसके पास होनी चाहिए, जिसे हम पावर टू परचेज़ कहते हैं, या जिसे हम इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलरली रिसोर्सेज कहते हैं। और उसकी मार्केट में रीज़नेबल प्राइस भी होनी चाहिए, यानी मार्केट में वो सेल फ़ोन की रीज़नेबिलिटी हो कि उसकी एक फेयर और जस्ट प्राइस हो मार्केट में। ये ना हो कि उसकी ख्वाहिश भी हो ख़रीदने की, उसके पास रिसोर्सेज भी हों, लेकिन मार्केट में किसी वजह से उसकी प्राइस हाई हो। तो जब ये तीन कंडीशंस पूरी होंगी तो डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी वायलेट हो जाएगी तो डिमांड जो है, इकोनॉमिक्स में डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो हम यही अज्यूम करते हैं कि रैशनैलिटी, रिसोर्सेज और रीज़नेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। देन हम डिस्कस करते हैं डेट व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड अल्फ्रेड मार्शल ने सजेस्ट किया था। डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। द लॉ ऑफ डिमांड सजेस्ट दैट ceteris paribus the nexus between price and quantity demand is negative. Nexus यहाँ पे relationship को कहते हैं। The relationship between price and quantity demand is negative. The negative association means that as price goes up, the quantity demand goes down. Whereas as price goes down, the quantity demanded goes up. अब यहाँ पे इस डेफिनेशन में काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने ज़ेरे बहस लेके आनी है। सबसे पहले ceteris paribus, जो आपको नोट भी नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, कि ceteris paribus मीन्स अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड और कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहें तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है। यानी जैसे ही प्राइस में इंक्रीज़ आता है, क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस हो जाती है। और ये एक बड़ा लॉजिकल कन्विंसिंग कंसेप्ट है। आपने अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि आप की ख्वाहिश भी होती है किसी चीज़ को ख़रीदने की, जो डिमांड की पहली कंडीशन थी। आपके पास सफिशेंट रिसोर्सेज भी हैं, जो डिमांड की दूसरी कंडीशन थी, लेकिन किसी वजह से उसकी प्राइस में हाइक आ गया है, उसकी प्राइस मार्केट में इंक्रीज़ कर गई है। अब जब प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो आपने ये देखा है कि आप या उस चीज़ को फॉर द टाइम बिंग, ये डिपेंड करता है खैर उसकी डिमांड के ऊपर, कि फॉर द टाइम बिंग आप क्या करते हैं, उसकी डिमांड को छोड़ देते हैं या उसकी डिमांड को घटा देते हैं। मसलन आपने वेट के हवाले से अगर आप बात करें तो आपने 10 kg वीट परचेज़ करनी है, 10 kg राइस परचेज़ करने हैं, तो आप क्या करेंगे, या तो उनकी डिमांड को फ्लैटली आप ख़रीदेंगे ही नहीं, या आप आप लिंगर ऑन कर देंगे उसकी डिमांड को कि चलें आज नहीं कल जब इसकी प्राइस रीज़नेबल होगी तो हम खरीदेंगे, या आप क्वांटिटी को रिड्यूस कर देंगे। बजाय 10 kg वीट और 10 kg राइस खरीदने के आप 5 kg वीट और 5 kg राइस खरीद लेंगे। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे प्राइस में, यानी प्राइस ऑफ वीट एंड प्राइस ऑफ राइस में जैसे ही इंक्रीज़ आया, आपने उसकी डिमांड को छोड़ दिया या कम कर दिया। तो नेगेटिव रिलेशनशिप है इन दोनों का। या दूसरे लफ्ज़ों में, एज प्राइस गोज़ डाउन, जैसे ही उनकी प्राइस में डिक्रीज़ आएगा तो अगेन आप क्या करेंगे, उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर देंगे। सो वन वे और द अदर वे देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये एक बड़ा लॉजिकल कन्विंसिंग लॉ है, इसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अभी तक आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई तो उसकी जस्टिफिकेशन में 2 पॉइंट हैं। The reason behind the negative relation is the income effect and substitution effect, because as price increases, the goods and services becomes expensive for the consumer,
so their purchasing power reduces, and also they find substitute, so in this way the demand for goods and services declines. तो दो पॉइंट है यहाँ पे, एक इनकम इफेक्ट है। सबसे पहले हम इनकम इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। अब आपकी 100 रुपीज़ मिसाल के तौर पे इनकम है। अब कोई भी चीज़ जब एक्सपेंसिव होगी, मसलन वीट की प्राइस डबल हो जाती है, तो पहले आप 10 kg वीट परचेज कर रहे थे, अब उसकी प्राइस डबल होने से आपकी बाइंग पावर कम हो गई है, क्योंकि आपके पास अमाउंट 100 ही आ रही है, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ने से अब वो वीट आपको 10 kg की बजाय 5 kg मिलेगा। तो इस तरह से भी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, या सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इस तरह से हो जाएगा कि अब आप वीट की बजाय राइस खरीद रहे हैं। तो क्या हुआ कि व्हेन प्राइस ऑफ वीट इंक्रीजेस, so either because of income effect or because of substitution effect, your quantity demand would be reduced for all other reasons. तो लॉ ऑफ डिमांड को हम थोड़ा सा इसके स्केड्यूल को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि क्वांटिटेटिवली भी हम इसको थोड़ा सा एनालाइज कर सकें। तो डिमांड स्केड्यूल में आपको 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं, द प्राइस विच इज़ इन रुपीज़, the quantity demanded which may be in units and the combination. अब आपको 2 कम्बिनेशन नज़र आ रहे हैं, कम्बिनेशन A एंड कम्बिनेशन B। अब एज्यूम करें, ये एक बड़ा पार्सिमोनियस और बड़ा सिंपल एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि कंज्यूमर्स जो है वो कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता है यूनिट में, और उसकी प्राइस है मार्केट में 2 रुपीज़। अब इस 2 रुपीज़ के साथ वो मार्केट में 4 यूनिट्स खरीद सकता है, ये कम्बिनेशन ए है। अब किसी भी वजह से मार्केट में इसकी प्राइस डबल हो जाती है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि प्राइस 2 से इंक्रीज़ होके 4 हो जाती है। अब जब प्राइस इंक्रीज़ होगी तो 2 इफ़ेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, एक इनकम इफ़ेक्ट जैसे मैंने तज़करा किया, और एक सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट। मैं दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ कि इनकम इफ़ेक्ट कि आपकी इनकम कांस्टेंट है और प्राइस डबल हो गई, तो अब क्या करेंगे, अब आप चीज़ों को कम अफोर्ड करेंगे। पहले आप 4 यूनिट खरीद रहे थे, अब आप 2 यूनिट खरीदेंगे। या इस तरह से ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ के आप 4 यूनिट खरीद रहे थे, उस चीज़ के 2 यूनिट घटा के आपने कोई और सब्सटीट्यूट, किसी और चीज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया। तो बहरहाल उस चीज़ के 2 यूनिट जब कम हो जाएंगे तो आपको बी कम्बिनेशन नज़र आ रहा है। तो आप देखें कि प्राइस में डबल इंक्रीज़ है और क्वान्टिटी डिमांड में डबल डिक्रीज़ है। So the relationship between price and quantity demand is negative. This is known as law of demand. अब इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली देख लेते हैं कि हमने 2 एक्सिस ले लिए, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया है क्वांटिटी डिमांड, और क्वांटिटी डिमांड को हमने डिमांड स्केड्यूल में मेंशन किया था कि ये यूनिट्स के अंदर है। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को मेंशन किया है, और प्राइस जो है वो रुपीज़ के अंदर है। प्राइस को हमने 2 और 4 मेंशन किया है रुपीज़ के अंदर, और क्वांटिटी डिमांड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये भी हमने 2 और 4 पे मेंशन किया है यूनिट्स के अंदर। अब हम ए कम्बिनेशन को अगर ज्वाइन करें, यानी हम प्राइस लें 2 रुपीज़ और इस ए कम्बिनेशन के ऊपर हम क्वांटिटी डिमांड लें 4 यूनिट्स, और जैसे ही किसी भी वजह से प्राइस में इंक्रीज़ आता है, यानी प्राइस 2 से इंक्रीज़ होके वाई एक्सिस के ऊपर 2 से इंक्रीज़ होके जब 4 पे जाएगी, तो एक्स एक्सिस पे आप देखें कि क्वांटिटी डिमांड 4 से रिड्यूस होके 2 पे आ जाएगी, यानी बी कम्बिनेशन बन जाएगा हमारे पास। तो ए कम्बिनेशन पे प्राइस स्टेबल थी, बी कम्बिनेशन पे प्राइस में डिक्लाइन आ गया। जो कर्व इस ए और बी कम्बिनेशन को समराइज़ कर रही है, उस कर्व को हम इकोनॉमिक्स में डिमांड कर्व कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन आप नोट करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं दैट डिमांड कर्व इज़ ए कर्व विच शोज़ द नेगेटिव रिलेशनशिप और डाउनवर्ड रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। व्हेन प्राइस इंक्रीजेज, quantity demand decreases, and by the same token when price decreases the quantity demand increases। यानी ये बात दोनों तरह से ठीक है। तो एरोज से हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि देखें प्राइस वाली साइड पे एरो जो है वो अपवर्ड है, यानी वाई एक्सिस के ऊपर ये प्राइस 2 से 4 पे इंक्रीज हो रही है,
और एक्स एक्सिस पे देखें एरो जो है वो बैकवर्ड है, क्वांटिटी डिमांड 4 से 2 पे रिड्यूस हो रही है। आप इस ग्राफ को उलट भी बना सकते हैं, यानी आप प्राइस 4 ले लें और क्वांटिटी डिमांड 2 ले लें, प्राइस को घटा के 4 से 2 ले आएँ तो क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्सिस पे 2 से इंक्रीज होकर 4 पे चली जाएगी, लेकिन तब भी रिलेशनशिप नेगेटिव ही रहेगा। सो वन वे और द अदर वे द डिमांड कर्व वुड बी स्ट्रिक्टली डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब लॉ ऑफ डिमांड में हमने सेट्रस पैरिबस को डिस्कस किया कि ये अदर फैक्टर्स क्या हैं जो कांस्टेंट रहें, क्योंकि अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप प्रूव नहीं हो पाएगा। तो नेगेटिव रिलेशनशिप के प्रूव करने के लिए अदर फैक्टर्स का जो कांस्टेंट रहना ज़रूरी है। अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि वो अदर फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट अदर फैक्टर्स है इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। देखें, आपने मार्केट में देखा होगा कि बाज़ औक़ात चीज़ें मार्केट में एक्सपेंसिव हो जाती हैं, लेकिन उस एक्सपेंसिव होने के साथ साथ हो सकता है कि कंज्यूमर्स की इनकम में इंक्रीज़ आ जाए, और जब कंज्यूमर्स की इनकम में इंक्रीज़ प्राइस के इंक्रीज से ज़्यादा हो तो आपने देखा है कि लोग मार्केट में एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को भी अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन हमने शुरू में ये कह दिया कि इनकम जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो चलें हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स में डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, यानी क्वांटिटी डिमांड का और इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, विच मीन्स व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज हिज और हर लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव्स। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? देखिए, आपकी इनकम कम है, अब क्या होगा कि जब आपकी इनकम में इजाफा होगा, इनकम में इजाफा कैसे हो सकता है कि आपकी सैलरी में इंक्रीज़ आ गया, आपको बजट में इंक्रीज़ आ गया, आपके प्राइस बॉन्ड लग गया, आपकी लॉटरी लग गई, आपके किसी भाई बहन रिश्तेदार की जॉब हो गई, अब आपका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो गया। अब आप क्या करेंगे, जो खुराक आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे आप उससे ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड फूड को अफोर्ड कर सकते हैं। अब फूड क्या है? क्वांटिटी डिमांड, और आपकी वेल्थ क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो जैसे इनकम बढ़ी आपकी फूड क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ फूड में इंक्रीज आ गया। इसी तरह से क्लॉथिंग है, शेल्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, यानी मार्केट में वो सारी चीज़ें जो आप ख़रीद रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। आप पहले से अच्छा खाना अफोर्ड करेंगे, पहले से अच्छे लिबास अफोर्ड करेंगे, पहले से अच्छी शेल्टर को, घर को अफोर्ड करेंगे, आप किसी सोसाइटी में घर ले लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हो जाएगी, आप बस की बजाय अपनी बाइक पे या अपनी कार पे ट्रैवल करेंगे। तो रिलेशनशिप क्वांटिटी डिमांड का इनकम के साथ अगर पॉजिटिव है तो ऐसी सारी गुड्स को हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। इसी तरह से इनकम का नेगेटिव रिलेशन भी होता है जिसे हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस। अब ज़रूरी नहीं कि कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज भी आए, कंज्यूमर की इनकम में डिक्रीज भी आ सकता है। इसे हमने इनकम को पहले कहा था कांस्टेंट है, लेकिन अब हम कांस्टेंट नहीं कह रहे, अब हम कह रहे हैं कि विच मीन्स व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्लाइंस देन हिज और हर लिविंग स्टैंडर्ड ड्रॉप्स। जब इनकम रिड्यूस होगी किसी भी वजह से, आपकी जॉब चली गई, उससे क्या होगा कि अब आप लो क्वालिटी की फूड को अफोर्ड करेंगे, आप लो क्वालिटी के क्लॉथ को अफोर्ड करेंगे, आप लो क्वालिटी के शेल्टर को अफोर्ड करेंगे, और हो सकता है आप अपनी बाइक या कार को बेच के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। तो जब इनकम कम होगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड में इजाफा हो जाएगा। तो अगर इनकम और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है तो वो इन्फीरियर गुड्स कहलाएंगी, और अगर इनकम और क्वांटिटी डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है तो वो नॉर्मल गुड्स कहलाएंगी। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों को हमने इससे पहले कांस्टेंट कंसिडर किया हुआ था, दैट ऑल अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट और हेल्ड अनचेंज्ड। नंबर 3, वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स एक्सपेंसिव गुड्स को कहते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं, दैट वेबलन गुड्स आर दोज गुड्स whose demand increases as income of the consumer as well as price of the product increases।
which means when income of the consumer improves then his or her status accordingly improves. अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वांटिटी इनकम में भी इंक्रीज आए, क्वांटिटी डिमांड में भी इंक्रीज आए और प्राइस में भी इंक्रीज आए। इन्फीरियर और नॉर्मल में हमने ये नहीं कहा था, इन्फीरियर और नॉर्मल में हमने ये कहा था कि इनकम में इंक्रीज हो तो डिमांड में इंक्रीज हो तो नॉर्मल है, डिमांड में डिक्रीज हो तो इन्फीरियर है। प्राइस का हमने तज़किरा नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे प्राइस का तज़किरा हो रहा है कि यानी इनकम भी बढ़े, उस प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़े और देन उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, यानी तीनों में इंक्रीज हो तो ऐसी गुड्स को हम वेबलेंट गुड्स कहते हैं। और मिसाल से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि मैं ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सपेंसिव वॉचेस की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सपेंसिव कार्स की बात कर रहा हूँ, मैं ऑर्नामेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सपेंसिव क्लॉथिंग और एक्सपेंसिव शूज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी ये चीज़ें जब महंगी होंगी और इनको ख़रीदने वाले लोगों की जब इनकम हाई होगी तो हम इनको एक्सपेंसिव गुड्स कहेंगे। डायमंड अगर चीपर हो जाएं तो कौन ख़रीदेगा उन्हें? कोई भी नहीं ख़रीदेगा। तो डायमंड्स का एक्सपेंसिव होना ज़रूरी है। तो ये वेबलेंट गुड्स या एक्सपेंसिव गुड्स कहलाती हैं। ये 3 पॉइंट थे इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स के, यानी इनकम डिमांड को नॉर्मल गुड्स में और वेबलेंट गुड्स में पॉजिटिवली और इंफीरियर गुड्स में नेगेटिवली इफेक्ट करती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सेकंड मेन हेड है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में 2 डेफिनेशंस आपको नज़र आ रही हैं, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स एंड परफेक्ट कंप्लीमेंट्स। ये रिलेटेड गुड्स क्या होती हैं, ये डेफिनेशन से हमें ये बात क्लियर होगी। परफेक्ट सब्सटीट्यूट की डेफिनेशन देखते हैं, दैट 2 गुड्स से गुड एक्स एंड गुड वाई आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, which means when price of X good increases then the quantity demand for Y good increases and vice versa is also true। यानी इसका उलट भी ठीक है। यानी यहाँ पे 2 डिफरेंट या 2 क्रॉस गुड्स की बात हो रही है, गुड X एंड गुड Y। आपने देखा होगा कि कुछ गुड्स बड़ी रिलेटेड होती हैं, यानी प्राइस किसी एक प्रोडक्ट की चेंज होती है लेकिन डिमांड किसी दूसरी प्रोडक्ट की इफेक्ट हो रही होती है। मिसाल के तौर पे पेप्सी एंड कोक। आपने देखा होगा कि मार्केट में जो लोग पेप्सी खरीद रहे हैं, अगर किसी वजह से पेप्सी की प्राइस में इंक्रीज होता है तो लोग क्या करेंगे, और कोक की प्राइस अनचेंज रहती है तो लोग क्या करेंगे, लोगों ने कोल्ड ड्रिंक तो पीनी है, वो क्या करेंगे, पेप्सी को छोड़ के कोक की डिमांड करेंगे। सो प्राइस ऑफ पेप्सी विच इज़ एक्स प्रोडक्ट इंक्रीजेज and the demand for coke, which is the quantity demand for Y product, has been increased. So the relationship is positive. Example एक और देख लेते हैं, कॉफ़ी एंड टी। जो लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, अगर कॉफ़ी की प्राइस किसी वजह से इंक्रीज़ होती है, कॉफ़ी ब्राज़ील बना रहा है, अब ब्राज़ील किसी वजह से कॉफ़ी की प्राइस में जब इंक्रीज़ लेके आता है तो हो सकता है कि चाय की प्राइस में इंक्रीज़ ना आए, चाय की प्राइस कांस्टेंट रहे। तो कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, कॉफ़ी को आप एक्स प्रोडक्ट समझ लें, टी की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, टी को आप वाई प्रोडक्ट समझ लें। तो जैसे ही कॉफ़ी की प्राइस बढ़ेगी लोग कॉफ़ी को छोड़ के टी पीना शुरू कर देंगे। सो प्राइस ऑफ एक्स इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड विद दी क्वांटिटी ऑफ वाई प्रोडक्ट। और लास्ट में एक और एग्जांपल है वीट एंड राइस। आप वीट भी खा सकते हैं, आप राइस भी कंज्यूम कर सकते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ वीट विच इज़ द एक्स प्रोडक्ट इंक्रीजेज, people will substitute, consumer will substitute on the product on the consumption of rice। वो राइस को ख़रीदना शुरू कर देंगे। क्या हो गया कि अगर गंदम महंगी हो गई है, हम चावल खाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपने ऑब्जर्व भी किया कि 1 kg फ्लोर की जो प्राइस थी वो 45 से इंक्रीज़ होकर 80 पे चली गई। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने राइस या ब्रोकन राइस को ख़रीदना शुरू कर दिया। तो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट का, यानी एक प्रोडक्ट की प्राइस का दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप। सो आई थिंक आपको यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो है वो क्लियर हो गया होगा, यानी 2 चीज़ें मोर और लेस एक दूसरे का मुतबादल है। तो देखा आपने कि क्वांटिटी डिमांड किसी और प्रोडक्ट की प्राइस से भी इफेक्ट हो सकती है। इसी तरह से परफेक्ट कंप्लीमेंट्स,
डेफिनेशन देखें, टू गुड्स से गुड एक्स एंड गुड वाई आर परफेक्ट कंप्लीमेंट, which means when price of X good increases, then the quantity demand for Y good decreases and vice versa is also true. अब यहाँ पे ये बात बिल्कुल उलट हो गई। सब्सटीट्यूट में था कि दोनों का रिलेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों का रिलेशन नेगेटिव है। ये बात डेफिनेशन के साथ आप याद रखिएगा वंस एंड फॉर ऑल। अब ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है कि महंगी एक प्रोडक्ट हो और डिमांड किसी दूसरी प्रोडक्ट की इफेक्ट हो जाए? तो ये एग्जांपल है पेट्रोल एंड कार। इमेजिन करें कि मार्केट में पेट्रोल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उससे क्या होगा? कार्स की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा? कार्स की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होगा यानी प्राइस ऑफ एक्स एक्सपेंसिव होगी, तो डिमांड फॉर कार्स यानी क्वांटिटी डिमांड फॉर वाई प्रोडक्ट डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जब लोग पेट्रोल नहीं खरीद रहे तो लोग गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे। मैं थोड़ी सी एग्जांपल बदल देता हूँ, इंक एंड पेन। मार्केट में जब इंक एक्सपेंसिव होगी, प्राइस ऑफ इंक जब इंक्रीज़ करेगी, तो लोग इंक नहीं खरीदेंगे, जिसका दूसरा मतलब है कि लोग पेन नहीं खरीदेंगे। सो डिमांड फॉर पेन विल डेफिनेटली डिक्रीज। और इसी तरह से एक और एग्जांपल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जीन्स एंड टी शर्ट। अब ये दोनों कंप्लीमेंट है, यानी जीन्स को टी शर्ट के साथ पहना जाता है। जब मार्केट में जीन्स एक्सपेंसिव होंगी, मसलन एक जीन जो आपको 2000 रुपीज़ की मिल रही थी, किसी भी वजह से वो मार्केट में आपको 3000 की मिल रही है, अब आप क्या करेंगे? आप जीन्स खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जीन्स की डिमांड कम हो जाएगी। तो जब आप जीन्स नहीं खरीद रहे तो इसका दूसरा मतलब है कि ऑब्वियसली आप टी शर्ट भी नहीं खरीद रहे। तो जीन्स और टी शर्ट की प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का जब नेगेटिव रिलेशन होगा, उसे हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में परफेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे। तो रिलेटेड गुड्स जो हैं वो दो तरह से हो सकती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अलावा बहुत सारे इनफाइनाइट फैक्टर्स हैं जो डिमांड को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पॉजिटिवली और नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज। आपने देखा होगा कि सीज़न के चेंज होने से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड में चेंज आता है। मिसाल के तौर पे एयर कंडीशन, उसकी डिमांड समर में और होगी, विंटर में और होगी। हीटर की एग्जांपल ले लें, विंटर में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, समर में उसकी डिमांड नेग्लिजिबल होगी। कौन है जो गर्मियों में हीटर खरीदेगा? इसी तरह से आइसक्रीम कोन्स हैं, उनकी विंटर में डिमांड और होगी, समर में डिमांड और होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि डिमांड समर में बहुत ज़्यादा होगी, विंटर में ज़ीरो होगी, लेकिन रिलेटिवली देखें कि समर में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, विंटर में रिलेटिवली उसकी डिमांड कम होगी। तो इसका मतलब है सीज़न पॉजिटिवली भी इफेक्ट कर सकता है डिमांड को, नेगेटिवली भी कर सकता है। टेस्ट, आपने देखा होगा कि कोई चीज़ आपको टेस्टी लगती है और वो एक्सपेंसिव है, आप खरीद लेते हैं। पर्टिकुलरली गुजरांवाला की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि गुजरांवाला के लोग जो हैं वो खाना खाने लाहौर भी आ जाते हैं कि जी टेस्ट है लाहौर में। वो वज़ीराबाद भी चला जाते हैं कि जी वज़ीराबाद में फ़लाँ जगह पे जो है वो शनवारी की कढ़ाई बड़ी मज़ेदार है, तो वो 30, 35, 40, 45 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट। हालांकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी आ जाएगी, फ्यूल की कास्ट भी आ जाएगी, ट्रांजैक्शन कास्ट भी आ जाएगी, उसमें उस प्रोडक्ट की प्राइस भी ऑब्वियसली जो टेस्टी है वो एक्सपेंसिव भी होगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद व्हेन समथिंग लुक्स टेस्टी टू यू फॉर ऑल अदर रीजंस यू परचेज इट एंड यू कंज्यूम इट। फैशन, व्हाट इज़ इन एंड व्हाट इज़ आउट। मार्केट में जो चीज़ इन है, whatever the price is, you will definitely consume it, you will definitely purchase it, क्योंकि फैशन है। एंड प्रेफरेंसेस, आपकी प्रेफरेंसेस बाज़-बात होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने कपड़े ख़रीदने हैं तो आपकी प्रेफरेंसेस हैं कि आप हमेशा डाइनर्स के ख़रीदेंगे या आप हमेशा बुटीक के ख़रीदेंगे। ये प्रेफरेंसेस होती हैं। शर्ट एंड टाई की आपने शर्ट लेनी है, आपने जे डॉट की शर्ट लेनी है, ये प्रेफरेंसेस हैं। बाज़ औक़ात चप्पल पहननी है तो वो जनाब पेशावर से ही ख़रीद के पहननी है, पेशावरी चप्पल ही पहननी है। तो ये प्रेफरेंसेस, फैशन, टेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये पॉजिटिवली भी काज कर सकते हैं डिमांड को, नेगेटिवली भी काज कर सकते हैं।
यानी डेफिनेशन ये कह रही है, इट इज़ आल्सो स्टेटेड दैट व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट चेंज, टेस्ट, फैशन एंड प्रेफरेंसेस चेंजेस, देन द डिमांड रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। तो कहने का ये मतलब है, इस सारी गुफ्तगू को जो हमने यहाँ तक लेके आए हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं, अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन ये 100% ठीक थी कि जब ये सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहें तो प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस होती है। लेकिन ये फैक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट ज़रूर करते हैं डिमांड। थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर में नॉर्मल गुड्स में इनकम डिमांड को पॉजिटिवली कर रही है, इन्फीरियर में नेगेटिव है, वेबलन में पॉजिटिव है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट में पॉजिटिव है, परफेक्ट कंप्लीमेंट में नेगेटिव है, टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंसेस, क्लाइमेट चेंज एंड एटसेट्रास, ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिवली भी कर सकते हैं और नेगेटिवली भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। अब ये डिफरेंस आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये आपने वंस एंड फॉर ऑल याद रखना है। डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू मेजर फैक्टर, then such a change in demand will be known as change of quantity demand. And when demand changes due to other factors, then such a change in demand will be known as change of demand. अब आपने इस पूरी डिस्कशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी मेजर फैक्टर की, जो प्राइस है, यानी प्राइस इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, प्राइस रिड्यूस होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, इसे कहते हैं मेजर फैक्टर। और प्राइस की मौजूदगी में बाकी सारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। और दूसरा पार्ट है इस सारी स्टोरी का सिट्रस पैरिबस। इस सिट्रस पैरिबस को हम अदर फैक्टर्स कह रहे हैं। अदर फैक्टर्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चाहे वो नॉर्मल है, इन्फीरियर है, वेबलन है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चाहे वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट हैं, परफेक्ट कंप्लीमेंट हैं, टेस्ट, फैशन, क्लाइमेट चेंज एंड प्रेफरेंसेस, ये जब चेंज होंगे और इनके चेंज होने से जब डिमांड चेंज होगी तो उसे हम सिंपली डिमांड कहेंगे। सो व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू मेजर फैक्टर, सच ए चेंज विल बी नोन एज change of quantity demand, and when demand changes due to other factors or when demand changes due to ceteris paribus, then such a change will be regarded as change of demand. अब ये बुनियादी फ़र्क यहाँ पे आपने गौर करना है। इसी डिफरेंस के ऊपर हम एक और डिफरेंस देख लेते हैं, डेट मूवमेंट एंड शिफ्टिंग। It is important to note that when demand changes due to major factor like price, then movement along the curve is recorded. यानी जब मेजर फैक्टर चेंज होगा तो जो ग्राफ में कर्व बनाई थी वो कर्व की मूवमेंट होगी along the curve. Whereas when demand changes due to other factors, then shifting of the curves are recorded. तब वो कर्व शिफ्ट होगी। यानी समरी आपको नजर आ रही है नीचे कि when price changes then movement along curves happens, when ceteris paribus or other factor changes then shifting of the curves occurs. इसका क्या मतलब है? ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको वही शुरू वाला ग्राफ नज़र आ रहा है जिसमें हमने प्राइस को 2 और 4 और क्वांटिटी डिमांड को भी 2 और 4 एज्यूम किया था। अब आप गौर करें कि पहले आप ए पॉइंट पे थे, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी। ए पॉइंट पे क्या है, प्राइस 2 थी, क्वांटिटी डिमांड 4 थी। बी पॉइंट पे क्या हुआ, ये जो शुरू वाला आपको बी पॉइंट नज़र आ रहा है, प्राइस में इंक्रीज हो गया, प्राइस 2 से 4 पे चली गई और क्वांटिटी डिमांड 4 से 2 पे रिड्यूस हो गई, तो नेगेटिव रिलेशनशिप आ गया। अब इसी डिस्कशन को उलट करते हैं, ये भी मैंने पहले कहा था कि अब आप ए पॉइंट पे समझें। ये जो बाद वाला ए पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये वाला जो ए पॉइंट नज़र आ रहा है, इस ए पॉइंट के ऊपर प्राइस हाई थी, यानी प्राइस 4 थी और क्वांटिटी डिमांड 2 थी। यहाँ पे जैसे ही ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम आएंगे, यानी अब उल्ट कर देना स्टोरी को, यानी प्राइस 4 से रिड्यूस होके 2 पे आ गई है, यानी ए पॉइंट पे आ गई है।
यानी बी पॉइंट पे सॉरी आ गई है, यानी प्राइस रिड्यूस होके बी पॉइंट पे जब आ गई है, यानी 4 से ये 2 पे आ गई है, तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड 2 से 4 पे आ जाएगी। तो यानी मूवमेंट अलोंग द कर्व हो गई। प्राइस जब इंक्रीज होगी तो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे रोटेट करेंगे, और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे रोटेट करेंगे। दोनों सूरतों में कर्व नेगेटिव रहेगी, दोनों सूरतों में रिलेशनशिप नेगेटिव रहेगा, दोनों सूरतों पे डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। लेकिन अगर यही चेंज आता है अदर फैक्टर की वजह से, अब मिसाल ले लें कि ये डिमांड कर्व है और डिमांड कर्व में इंक्रीज आया है कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई है। अब क्या होगा, अब इस सूरत में डिमांड कर्व D1 से D2 पे शिफ्ट हो जाएगी, अपवर्ड शिफ्ट आ जाएगा इसके अंदर। यानी याद रखिएगा कि जब डिमांड कर्व D1 से D2 राइटवर्ड और अपवर्ड जब शिफ्ट होगी तो डिमांड में इंक्रीज आएगा। तो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, द D1 कर्व विल इंक्रीज एंड शिफ्ट टू D2 अगर डिमांड में इंक्रीज आए। और अगर डिमांड में किसी अदर फैक्टर्स की वजह से, सेट्रस पैरिबस की वजह से जब डिक्लाइन आएगा तो डिमांड D1 से डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी D3 के ऊपर। तो इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। सो क्रक्स ये है कि व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू मेजर फैक्टर, then movement along the curve from A point to B point or B point to A point is recorded. Whereas when demand changes due to other factors, then demand curve either rightward or upward, or either it shift to the downward or leftward at D3. अब लास्ट में एक एग्जेम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड की, उस एग्जेम्पशन को गिवन गुड्स कहते हैं। डेफिनेशन है, द सिचुएशन वेयर देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज सिंपली नोन एज गिवन गुड। द नेम which is named after the Irish economist Sir Robert Giffen. For example, the government of Pakistan's policy that advised the motorists to wear helmet while they ride the bikes. So one has seen that the price of helmet increased drastically, and even then the riders were buying the helmets. So positive association between price and quantity demand can be seen in this case. Giffen Good, मैं समझा देता हूँ आपको। रॉबर्ट गिफन ये आयरलैंड के एक इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने कहा कि कभी कभी कुछ सिचुएशंस के अंदर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन पॉजिटिव भी हो जाता है, यानी प्राइस बढ़ रही है और साथ साथ क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। इसे ये एग्जेम्पशन है, ये एक रेयर केस है लॉ ऑफ डिमांड का। तो उसकी मिसाल मैं आपको दूँ कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हेलमेट को जो था वो बड़ा ज़रूरी कर दिया था कि विदाउट हेलमेट जो है वो, मोटरिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो राइडर्स हैं, कि वो हेलमेट के बगैर जो है वो ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, बाइक नहीं चलाएंगे। तो उससे नतीजा क्या निकला, लोगों ने हेलमेट, यानी बाइकर्स ने हेलमेट को ख़रीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में वो हेलमेट जिसकी प्राइस 500 रुपीज़ थी, आप बिलीव करें कि उसकी प्राइस मार्केट में 2000 रुपीज़ भी हो गई, क्योंकि अगर वो हेलमेट नहीं ख़रीदते तो उनके मार्केट में बड़े हैवी चलान हो रहे थे। अब वो मजबूरन हेलमेट ख़रीद भी रहे थे ताकि उनके चलान ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, और साथ साथ उन हेलमेट की प्राइस में भी इंक्रीज़ आ रहा था। सो प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है मजबूरी की वजह से। तो ऐसा रिलेशनशिप अगर आ जाए तो ये एक रेयर केस होगा, एक एग्जेम्पशन होगी लॉ ऑफ डिमांड की। सो टिल नाउ, थैंक यू वेरी मच।